In first lecture, we will discuss about the symmetrical simultaneous linear differentiable equation. ओके उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है. ओके सॉल्यूशन तो हमने देखा है इन फर्स्ट लेक्चर में. सॉल्यूशन क्या है? बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन. ओके बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन, मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम उसे. नाउ सेकंड मेथड बाय यूजिंग मल्टीप्लाइजर्स. बाय यूजिंग मल्टीप्लाइजर्स. ओके तो आपके पास उसका फॉर्म क्या है? फॉर्म dx upon p is equal to dy by q is equal to dz upon r. This is form. Okay, this is form. dx upon p is equal to dy by q is equal to dz upon r. Here p comma q comma r are the functions of x y z. Are the functions of x y z. Okay. Now by using Lagrange's multiplier, we have to find solution of such type of differentiable equation. Okay. तो देखो, choose the multipliers L comma M comma N. Choose the multipliers L comma M comma N such that L dx upon divided by LP is equal to M dy divided by MQ is equal to N dz divided by NR is equal to L dx plus M dy plus N dz divided by LP plus MQ plus NR. Okay, such that LP plus MQ plus NR इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. ध्यान दीजिए सब लोग. यहाँ पे आपका फोकस क्या है? वी हैव टू चूज और वी हैव टू सेलेक्ट द वन सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स दैट इज L M N. L M N क्या होना चाहिए? L into P ओके प्लस M into Q प्लस N into R. ये क्या होना चाहिए? 0. ये क्या होना चाहिए? 0. LP प्लस MQ प्लस NR is equal to 0 implies L dx प्लस M dy प्लस N dz इक्वल टू क्या मिलेगा? 0. ओके तो आपका टारगेट क्या है? वी हैव टू सेलेक्ट द मल्टीप्लायर्स L M N इन सच वे दैट L into P प्लस M into Q प्लस N into R क्या होना चाहिए? 0 implies L dx प्लस M dy प्लस N dz is equal to 0. Now integrate this, we get one solution. Integrate, we get L dx plus M dy plus N dz is equal to C1. We get one solution. Okay. Now same. Also choose L dash M dash N dash. Also choose L dash M dash N dash in such way that क्या होना चाहिए? सेम. यहाँ पे क्या जाए? हाँ यहाँ पे क्या मिलेगा? L dash P प्लस M dash Q प्लस N dash R इक्वल टू 0 in such way that L dash P प्लस M dash Q प्लस N dash R इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 0 implies क्या हो जाएगा? implies L dash dx plus M dash dy plus N dash dz equal to 0. तो implies L dash dx plus M dash dy plus N dash dz equal to 0. Okay. Then from this we get second solution. Integrate these. Integrate, we get integration L dash dx plus M dash dy plus N dash dz is equal to C2. Okay, this is your second set of solution. Okay, तो क्या है multipliers? तो first select the multipliers L M N in such way that L into P plus M into Q plus N into R क्या होना चाहिए? 0 implies L into dx plus M into dy plus N into dz
0. Then integrate, we get one solution. Also for finding second solution, select same set L dash M dash N dash in such way that L dash into P plus M dash into Q plus N dash into R equal to क्या होना चाहिए 0. तो implies L dash dx plus L dash M dash dy plus N dash dz equal to 0. Integrate, we get second solution. Okay, this is method number 2 for finding solution of symmetrical simultaneous linear differentiable equation. Okay, now example first. dy upon z minus x is equal to dz upon x minus y. Now look on the board. This is your symmetrical simultaneous linear differentiable equation. Okay, this does not belongs to this is symmetrical simultaneous. Okay, suppose we have to find the solution of this by using method of combination. तो combination से उसका आंसर मिल सकता है कि हमें नहीं मिल सकता, because कौन से भी टू ग्रुप सेलेक्ट किया तो कैंसिल नहीं होता है. Okay, then how to find solution? For this purpose we have to use the multiplier method. Okay, multiplier method अभी देखो, we have to select L dash M dash और L M N in such way that उसे मल्टीप्लाई किया प्लस उसे मल्टीप्लाई किया प्लस उसे मल्टीप्लाई किया एंड सबकी एडिशन की तो क्या आना चाहिए 0. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, कौन से मल्टीप्लाई के suppose this set 1 comma 1 comma 1 1 comma 1 comma 1 क्या मिलता है देखो, 1 into y minus z क्या बचेगा y minus z प्लस 1 into z minus x क्या जाएगा z minus x and 1 into x minus y क्या आता है वो, is this 0? Yes, this is 0. This is 0. तो यहाँ पे हमने सेट कौन सा लिया है 1 comma 1 comma 1. तो implies 1 into dx 1 into dy 1 into dz क्या आना चाहिए 0. Okay, then integrate. क्या मिलेगा 1 dx 1 dy 1 dz इक्वल टू 0. देन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस उसका इंटीग्रेशन y प्लस उसका z इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c1. ओके, वी गेट वन सोल्यूशन. नाउ वी हैव टू फाइंड सेकंड सोल्यूशन. ओके, सेकंड सोल्यूशन, चूज कौन से पढ़ेंगे, चूज यहाँ पे क्या है y माइनस जेड, यहाँ पे क्या है z माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, dx डिवाइड बाय y माइनस जेड. ओके, यहाँ पे x एब्सेंट है. ओके, dy डिवाइड बाय z माइनस एक्स, यहाँ पे y एब्सेंट है एंड dz डिवाइड बाय x माइनस वाई, तो यहाँ पे z एब्सेंट है. तो सपोज वी हैव टू चूज द सेट x y z. तो क्या मिलता है देखो, x इंटू दिस क्या जाएगा x in bracket y minus z plus y into the second plus z in bracket x minus y. Now solve this. क्या मिलेगा वो, फर्स्ट xy minus xz plus yz minus yx plus zx minus zy. क्या ये 0? Yes, xy cancel, xz cancel, yz cancel. This is 0. This is 0. This is 0. वो 0 आए तो implies यहाँ पे क्या कौन सा सेट है x y z, तो implies x into dx plus y into dy plus z into dz equal to 0. Integrate क्या मिलेगा x इंटू dx y इंटू dy z इंटू dz इक्वल टू 0. देन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल सपोज c2 डिवाइड बाय 2, बिकॉज यहाँ पे क्या आने वाले हैं 2 2 2. ओके,
तो क्या जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई 2. 2 get cancel, we get x square plus y square plus z square is equal to C2. This is your second set of solution. This is second set of solution. This is first and this is second. This is first and this is second. Okay, and these two are linearly independent. These two are linearly independent. Okay, this is your example first. This is called by using method of multipliers. Okay, now we have to discuss one example. Solve dx upon x in bracket 2y raised to 4 minus z raised to 4. X in bracket 2y raised to 4 minus z raised to 4 is equal to dy upon y in bracket z raised to 4 minus 2x raised to 4. Z raised to 4 minus 2x raised to 4 is equal to dz divided by z in bracket x raised to 4 minus y raised to 4. Z in bracket x raised to 4 minus y raised to 4. Okay. Okay, this is your example. Now solution. Taking first set of solution. यहाँ पे क्या है 2y raised to 4. Okay. यहाँ पे क्या है 2x raised to 4. Okay. यहाँ पे क्या है z raised to 4. यहाँ पे क्या है x raised to 4. Okay. तो देखो सपोज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 4 4. ओके, एक्स वाई जेड का 4 4 4. तो यहाँ पे x डिवाइड में है, यहाँ पे y डिवाइड में है, यहाँ पे z डिवाइड में है. ओके, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है. ओके, तो सपोज कंसीडर यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है. तो उसका भी पावर क्या होना चाहिए 4. उसका पावर क्या होना चाहिए 4. चूज द सेट x क्यूब y क्यूब z क्यूब. चूज द सेट x क्यूब y क्यूब z क्यूब. क्या मिलेगा उसे x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा x रेस टू 4. तो ये क्या होगा 2x रेस टू 4 y रेस टू 4. ओके, 2x रेस टू 4 y रेस टू 4. यहाँ पे क्या है y, तो y रेस टू 4 होगा. यहाँ पे क्या होगा 2x रेस टू 4 y रेस टू 4. तो कैंसिल. ओके, देखते हैं क्या होता है. तो क्या मिलेगा x रेस टू 4 2y रेस टू 4 माइनस z रेस टू 4 प्लस y इंटू वाई क्यूब y रेस टू 4. तो क्या जाएगा z रेस टू 4 माइनस 2x रेस टू 4 z इंटू z क्यूब. क्या मिलेगा z रेस टू 4 x रेस टू 4 माइनस y रेस टू 4. तो क्या जाएगा वो x रेस टू 4 2 टाइम्स y रेस टू 4 माइनस x रेस टू 4 z रेस टू 4 प्लस यहाँ पे y रेस टू 4 z रेस टू 4 माइनस 2 टाइम्स x रेस टू 4 y रेस टू 4 प्लस z रेस टू 4 x रेस टू 4 माइनस z रेस टू 4 y रेस टू 4. ओके, तो देखो कैंसिल हो सकता है. this term cancel, this term cancel, this term and this term cancel. तो उसका आंसर क्या जाएगा 0. this implies this is 0. okay, a 0 है तो implies this into this 0. okay, this implies x cube dx plus y cube dy plus z cube dz क्या जाएगा 0. then integrate. इंटीग्रेट क्या मिलेगा इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस y क्यूब dy प्लस z क्यूब dz इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय 4. बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में क्या आने वाला है 4.
तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स रेज टू 4/4 वाई क्यूब बाय 4 प्लस जेड 4 रेज टू 4/4 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय 4. देन कैंसल 4 फ्रॉम दी बोथ द साइड, क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस z रेज टू 4 इज इक्वल टू C1. दिस इज योर सॉल्यूशन सेट फर्स्ट सॉल्यूशन. x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 is equal to C1. Okay, also choose, एक solution मिल गया, we have to find second solution. Choose, क्या choose करना पड़ेगा, choose the second set of multipliers. यहाँ क्या आना चाहिए second set, ये क्या जाएगा x, ये क्या जाएगा y, then second, then और यहाँ पे क्या है 1/x, यहाँ पे सबके पावर सेम है, यहाँ पे x है तो x हमने 1/x लिख दिया, y 1/y लिख दिया. तो फॉर z क्या आना चाहिए, फॉर z यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स y 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स z होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स z. तो सेकंड सेट क्या मिलेगा, सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, 1/x 1/y एंड 1/z. ओके, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है z का, यहाँ पे पावर सेम है. ओके, यहाँ पे z रेज टू 4 है, यहाँ पे z रेज टू 4 है, समझ में आता है. देन यहाँ पे y रेज टू 4 है, यहाँ पे x रेज टू 4 है. ओके, यहाँ पे x रेज टू 4 है, यहाँ पे y रेज टू 4 है. तो 1/x 1/y एंड 1/z एक सेट हो सकता है, बट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का भी क्या है 2, आल्सो z का भी क्या होना चाहिए 2. तो z का हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2. तो देखते हैं, चूज द सेट 1/x 1/y and 2/z. why 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पे 2 x को मल्टीपल में है, यहाँ पे 2 y को भी मल्टीपल में है, z को भी मल्टीपल में होना चाहिए. ओके, देखते हैं क्या होता है. मल्टीप्लाई दिस 1/x 1/y एंड 1/z टू दिस एंड दिस. तो क्या जाएगा, 1/x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई दिस 1/x मल्टीप्लाई दिस 1/x. तो क्या जाएगा, उसे मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल होगा. ओके, x गेट कैंसिल, क्या बचेगा 2y रेज टू 4 माइनस z रेज टू 4 प्लस 1/y से मल्टीप्लाई किया तो y गेट कैंसिल, क्या बचेगा z रेज टू 4 माइनस 2x रेज टू 4 प्लस 2/z से z कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x रेज टू 4 माइनस 2y रेज टू 4. नाउ सिंप्लीफाई दिस. देखो अभी z रेज टू 4 गेट कैंसल, माइनस 2x रेज टू 4 प्लस 2x रेज टू 4 गेट कैंसल, यहाँ पे 2y रेज टू 4 माइनस 2y रेज टू 4 गेट कैंसल. दिस इज 0. उसका सिलेक्शन समझ में आ गया कैसा करना है. यहाँ पे a, ओके, तो यहाँ पे x का पावर क्या है 4, y का पावर क्या है 4, z का पावर क्या है 4. तो x का यहाँ पे कोई भी यूज है क्या, नहीं है. ओके, यहाँ पे सेम y, here same z. okay, at that time we have to choose the multiplier 1/x 1/y and 1/z. but 2 क्यों आया यहाँ पे, because y का कोएफिशिएंट 2 है, z also x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो z का भी कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 2. ओके, फॉर दिस पर्पज. नाउ मल्टीप्लाई दिस 1/x इंटू dx. तो क्या जाएगा 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल टू 0. 2/z dz is equal to 0. Then integrate 1/x dy plus 1/y dy plus 2/z dz is equal to C2. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log of x प्लस 1/y का log of y, देन 1/z का 2 log of z इज इक्वल टू log of C2. यहाँ पे log भी लिख दिया तो भी चलेगा, log of C2. ओके, नाउ कैंसल log, यहाँ पे क्या है एडिशन, सब कैंसिल होगा, 2 टाइम्स x y z और दिस 2 गोज टू पावर ऑफ दिस, तो क्या जाएगा x y z स्क्वायर इज इक्वल टू C2. दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन. Okay, here first unit is over.